حروف تہجی کے بارے میں بتاؤں گا، اور اسی عربی کی حروف تہجی میں اردو کی بھی پہچان بتاؤں گا کہ اردو کے سیم ایسی حروف ہے، کچھ زیادہ حروف بڑھی ہوئی رہتی ہے، جیسے با کے بعد پا ہے، تا کے بعد ٹا، اگر آپ یہاں آ جائیں تو جیم کے بعد چا، اسی طرح یہاں گاپ، کاپ کے بعد گاپ، اور اگر یہاں اور آگے آ جائیں گے تو دال کے بعد ڈال، زا کے بعد زا۔ لیکن ایک چیز اور بھی خیال رکھا جائے کہ جیسے قرآن پاک عربی میں ہے اور اس عربی کی وجہ سے معروف پڑھتے ہیں، تو معروف پڑھنے کی وجہ سے ہم اس حروف تہجی کو، اس حروف کو ہم الف، با، تا، تا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اردو میں پڑھیں تو اردو میں جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو اردو کیونکہ لشکر، اردو کا معنی ہی ہے لشکر، یہ اس اردو جو بنا ہے تو بہت ساری زبانوں کو مل کر کے اردو بنائی گئی ہے، اور جب اس میں بہت ساری زبانیں جب ملی گئی ہے تو ہم اس اردو کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس اردو کو زیادہ تر پڑھنے میں یہی ہے کہ مجہول پڑھیں، جیسے الف، بے، تے، تے۔ جیسے گرامر ہے ایک چیز کی، آپ کو میں بتا دوں کہ ہر ایک زبان کی ایک گرامر ہے، چاہے انگریزی میں لے لیں، چاہے ہندی میں، چاہے اردو یا عربی میں۔ جیسے ہم صرف نام الگ الگ ہے، اور اگر ہم ایک چیز کو سمجھنا چاہیں، کوئی بھی چیز لے لیں تو کام سیم ہے لیکن اس کے نام الگ الگ ہیں۔ جیسے اسی چیز کو ہم حروف تہجی کو ہم کہتے ہیں قواعد، یعنی قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ اگر ہم انگریزی میں جائیں اور انگریزی میں اس چیز کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ، اس چیز کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ اور ہندی میں اگر لے لیں تو ہندی میں ہم کہیں گے اس کو ورنمالا، ہندی میں ورنمالا کہیں گے، اور اس کو اگر ہم ورنمالا، اگر قواعد کو ہندی میں کہیں گے تو اس کو ویاکرن کہتے ہیں۔ جیسے اگر پڑھنا چاہیں کہ یہ الف ہے تو الف کو اگر ہندی میں ہم سمجھیں گے کہ یہ الف کیسے لکھا جائے گا، الف اگر ہے کیا، الف دیکھیے یہ آپ کا الف ہو جائے گا۔ اب بھی یہ سوچیں گے کہ یہ الف عربی میں یا اردو میں ایک صرف لکیر کھینچ دیا جاتا ہے تو ہم اس کو الف سمجھ جاتے ہیں، آخر کیسے؟ اور اسی الف کو ہم سمجھتے ہیں ایک ڈنڈا کھینچ دیا جائے، ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں۔ لیکن ہندی میں جب ہم لکھے ہوئے ہیں تو ہندی میں اتنی ساری لیٹر، یعنی اتنے سارے اکچر لکھا ہوا ہے، لوہرسیکار فو، تب الف لکھا گیا، تب ہم اس کی آواز کو، پروننسیشن کو الف نکالتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی اگر ہم اردو میں لکھیں گے اس کو تو یہاں اس کو بھی الف اور لام اور فا سے لکھا جائے گا، جیسے الف، یہ ہو جائے گی آپ کی الف۔ لیکن جو اسٹرکچر، جو بناوٹ ہے تو وہ صرف سنگل ایک لکیر کھینچ دیجئے اور اس کو ہم الف پہچانتے ہیں۔ اگر اس کے بعد اگر ہم اس بے کو پڑھیں گے، جیسے عربی میں اگر ہم پڑھیں تو با، اردو میں پڑھیں گے تو بے، بے کیسے پڑھیں گے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بے، بو ایکار، بو ایکار بے۔ اب آگے آ جائیں کہ تے، تو ایکار، سو ایکار، جیم۔ یہ دیکھیے جیم جب بولا جاتا ہے تو یہ جیم ایک سنگل لیٹر ہے لکھاوٹ کے اعتبار سے، لیکن یہ جیم سنگل لیٹر بولنے میں جب بول دیتے ہیں تو یہ اردو کے 3 حروف آتی ہے، اردو کے جیسے جیم۔ اسی چیز کو اگر ہم ہندی میں لکھتے ہیں تو جو درگی کار، جو درگی کار مو، جو درگی کار مو۔ اب اس کے بعد آگے والے حروف میں ہم دیکھتے ہیں ہے۔ ایک چیز یہاں اور بھی خیال رکھنی ہے کہ اس کو اگر ہم پڑھاتے وقت بچوں کو کیا بتاتے ہیں، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے چھوٹی ہے کی تو پہچان کراتے، لیکن یہاں نہیں، یہاں اس کی آواز تھوڑی سی کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کو ہلکی میں پڑھیں گے، ہلکے میں ہے، اس کو ہم زیادہ پڑھیں گے آواز سے ہے، اس کو ہلکے میں لیں گے ہے۔ لیکن بچوں کے ذہن کو سمجھانے کے لیے، اس کو اچھی سے آسانی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے ہم کیا بتا دیتے ہیں، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ تو اس ہے کو اگر ہم ہندی میں لکھتے ہیں تو ہو ایکر ہے، ہو ایکر ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں یہ کھو، تو
खौ खे, उर्दू हम पढ़े खे, या अरबी के अगर अल्फाज अरबी के अगर ज़ुबान में बोलेंगे तो खा, तो अगर हम इसको उर्दू बोल रहे खे तो हिंदी में होगा ख एकार खे। दाल, दाल द आकार लो दाल, द आकार लो दाल। जाल, ज आकार लो जाल। रे, अब इस चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे रे, र एकार रे। ज, जे को हम ज एकार जे। लेकिन एक चीज की और ख्याल रखनी है कि उर्दू में जैसे जे हो गया, जीम हो गया और एक ज़्वाद या ज़ा, तो इसमें हुरूफ अरबी और उर्दू में है तो इसकी हुरूफ की अलग अलग पहचान भी है और अलग अलग लहजा यानी कि अलग अलग तलफ़ुज़ भी है। जैसे अगर हम इसको जे बोलेंगे तो जा झंझनाहट की आवाज आएगी, और यह जीम एक खिंचाव की आवाज आएगी जीम। लेकिन जब हिंदी में हम लिखते हैं इस चीज को, तो हर जगह जीम को भी हम जा से लिखते हैं, जौ से लिखेंगे, जा को भी जौ से लिखते हैं। उसी तरह जो को भी जो इसको भी हम क्या करते हैं कि जौ से ही लिखा जाएगा, जैसे जौ, इसको हम जौ बोल देंगे जौ। तो हालांकि अगर उर्दू में हम बोले या अरबी में इसको जो ज्वा, अरबी में बोलेंगे तो ज्वा, उर्दू जो। एक चीज और आगे आ जाए, ये हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं उर्दू, जब छोटी छोटी बेसिक जब शुरुआत में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहचान कराने के लिए इसको बोलते हैं छोटी सीन बड़ी सीन नहीं, इसको छोटी सीन बड़ी सीन तो बोल देते हैं लेकिन इसकी आवाज भी अलग अलग है। जैसे इसको अगर हम बोलेंगे तो सीन, अगर इसको हम बोलेंगे तो सीटी के साथ आवाज आएगी शीन। तो यहाँ क्या है, प्रोनाउंसिएशन जिसे तलफ़ुज़, इस तलफ़ुज़ को आवाज यानी आवाज को अलग अलग करके बोलेंगे। लेकिन जब बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम छोटी सीन बड़ी सीन कह देते हैं। हालांकि इसको पहचान छोटी सीन बड़ी सीन के साथ साथ इसकी आवाज की भी उसको बच्चों को बताएंगे कि इसकी आवाज इस तरह, इसकी आवाज इस तरह, इसकी आवाज हल्की रहेगी, इसकी आवाज सीटी के साथ रहेगी। जैसे शीन। अब उसी के आगे अब इसको हल्की से लेंगे सीन। अगर इस चीज को हम हिंदी में भी लिखते हैं सीन, इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तलवशो, जिसको कहते हैं तलवशो यानी शीन। अब एक चीज आ जाए, ये स्वाद, ये सीन और ये शीन जो इन दोनों के बीच की आवाज आएगी स्वाद। द्वाद, इस चीज को अभी ध्यान दें कि अगर ये द्वाद जो है अगर अरबी में बोलेंगे हम इसको पढ़ेंगे तो द्वाद पढ़ेंगे, उर्दू में इसको हम पढ़ते हैं ज़्वाद। जैसे अगर कहीं चीज ये देखिए आप, जो अगर लिखते हैं बाज, ये बाज बाइन ज़्वाद, ये ज़्वाद यहाँ पढ़ी जाएगा उर्दू में। लेकिन इसको अगर हम अरबी में पढ़ें तो द्वाद पढ़ेंगे। जैसे वलद्दालीन, तो इसको हम ये द्वाद पढ़ते हैं, और इसको अगर उर्दू में यहाँ हम पढ़ते हैं तो ज़्वाद पढ़ते हैं। ये अरबी में हम पढ़ें तो ज़्वाद, उर्दू में पढ़ें तो अरबी में पढ़ें तो द्वाद, और उर्दू में इसको पढ़ते हैं तो ज़्वाद पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे देख लें कि अगर हम इसको उर्दू में बोलेंगे तो उसी चीज को हिंदी में सेम अगर हम लिखे हैं तो जो आइन। अब एक चीज यहाँ भी ध्यान रखें कि आइन, इसमें भी बहुत सारे हुरूफ है। जैसे हर्षी का नौ, और यानी छोटी बड़ी बड़ी नौ, आइन गईन बड़ी नो गईन पे। अब एक चीज यहाँ भी बताते हैं बच्चों को कि बड़ी काफ छोटी काफ बड़ी काफ, लेकिन यहाँ इस चीज को हम बड़ी काफ छोटी काफ तो कह देते हैं, इसकी भी आवाज अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं कॉफ, ये हल्के में बोलेंगे काफ काफ काफ। लेकिन अगर हम इस चीज को हिंदी में लिखते हैं तो इस हिंदी की पहचान के लिए हम ये चीज कर देते हैं कि उसके कौ
क के नीचे एक डॉट देते थे बुंदी, ताकि इससे पहचान क्या हो जाती है कि ये जो लिखी गई हिंदी, तो इसमें उर्दू बड़ी काफ की है, बड़ी काफ का मतलब बड़ी काफ वाला हरूफ है। लेकिन इस चीज को अगर हम लिखते हैं, यहाँ सेम हरूफ रहता है हिंदी का, यहाँ डॉट नहीं देते, इसके अंदर डॉट देते हैं नीचे। अब ये हो गया लाम, लाम, मीम, नून, वाव, हे। अब उसके बाद एक हरूफ है हमजा, उसके बाद लास्ट में आखिर में ये जिसको अरबी में अगर हम बोलते हैं तो या बोलते हैं, या। तो इतनी सारी जितने भी अल्फाबेट, जितने भी ये हरूफ है, इसको हम अरबी में हरूफ तहज्जी कहते हैं, और इसी चीज को अंग्रेजी में हम क्या अल्फाबेट कहते हैं, और हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे हर एक की अलग अलग पहचान है। अगर हम वर्णमाला बोले तो हिंदी के क ख ग को वर्णमाला बोलते हैं, क ख ग घ अंग। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। इस चीज को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन यही अगर हम अंग्रेजी को ले लें तो अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते हैं हम इसको। इसी चीज को हम अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी। यही चीज है कि अगर हम अंग्रेजी में बोले तो अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट का क्या लेटर है तो ए बी सी डी। अगर हिंदी में बोले तो वर्णमाला, उसकी क्या अक्षर है तो क ख ग। अगर हम उसी को हरूफ तहज्जी बोले तो उसके क्या हरूफ है तो अलिफ बे ते। अब एक चीज ये भी ख्याल रखें, ये इतने सारे हरूफ तो ये अरबी के हैं, जो जिसकी गिनती 29 की जाती है। और हिंदी को अगर आप को बखूबी मालूम है कि हिंदी के 52 हरूफ है, 52 अक्षर है, और अंग्रेजी के 26 लेटर है। बाद में बताऊं कि ये हरूफ उर्दू की कैसे पहचाने। सेम इसी तरह है, बस कुछ जायद हरूफ है कि बा के बाद हम पे, बे के बाद पे पढ़ते हैं, बे के बाद ये सेम लकीरें खींची जाएगी, और उसके नीचे 3 नुक्ता डाल देंगे, 3 नुक्ता लगाएंगे तो उसमें पे पढ़ेंगे। अब सेम उसी तरह ये रहेगा, ते लकीर खींच देंगे, उसके अंदर छोटा सा तो की तरह बनाएंगे, उसको हम पे पढ़ते हैं, टे, उसको हम पढ़ेंगे टे। बस एक ये जायद हरूफ ये है। अब उसके बाद से के बाद जीम, जीम के बाद एक और सेम उसी तरह हरूफ है, जीम को बनाते जैसे उसी तरह उसके अंदर एक 3 नुक्ता दे देते हैं, तो इसको हम छे पढ़ते हैं। उसके बाद अब हे खे दाल, दाल के सेम उसी तरह आगे सेम वैसी हरूफ बनाना है, और उसके आगे जैसे छोटी सा तो बनाना है, तो ये डाल हो गया। उसी तरह रे, रे के आगे एक सेम वही रे बनाना है, और उसके ऊपर में छोटा सा एक तो बनाना है, उसको रे बोलते हैं। ये रे वहां बड़ी रे, जो बड़ी रे छोटी रे कहते हैं। जिससे अगर हम बाड़ी लिखते हैं, बाड़ी, उसी चीज को अगर हिंदी लिखेंगे, ब आकर र दुर्गी का री, बाड़ी, बाड़ी बाड़ी बाड़ी। रे के बाद जे के बाद एक बड़ी जी आती है, जिसको 3 नुक्ता दी जाती है। ये बहुत ही कम लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। जैसे अंग्रेजी के वर्ड अगर कहीं लिखे जाए, जैसे वर्जन, जैसे टेलीविजन, टेलीविजन, यहाँ आपको ये 3 नुक्ते वाली जा का इस्तेमाल करना होगा। टेलीविजन, टेलीविजन, वर्जन, वर्जन, टेलीविजन, ये सब अंग्रेजी के हरूफ है। इसमें वही बड़ी 3 नुक्ते वाली जा को इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, फ, ज़, ऐन, गैन, फा, काफ। काफ के बाद 2 आकर सेम वैसे ही रहेगा, और 2 लकीरें खींचेंगे तो इसको गाफ पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में ये आता है गाव, ग आकार फौगाव, ग आकार फौगाव। इस चीज को हम हिंदी में लिखेंगे तो डाल, जे सेम रहेगा, सिर्फ करता है रे। अब उसके बाद लाम मीम नून
वाव, एक और हुरूफ होता है जिसको दो चश्मी कहते हैं, दो चश्मी है। और उसके बाद हमजा, और एक और हुरूफ होगा उर्दू में जो लाम अलिफ कहते हैं, तो लाम अलिफ, लाम अलिफ। उसके बाद ये फिर एक और ये बड़ी ये छोटी है कि जैसे ये आए मारूफ भी कहा जाता है, या आए मजबूर, ये वाली उर्दू में ये रहता है। अब एक चीज और भी ख्याल करें कि उर्दू में जब पढ़ते हैं तो इसमें मुफरद और मुरक्कबी की हुरूफ की पहचान होती है। जैसे ये जितने भी हुरूफ या हुरूफ तहज्जी है, तो ये सारे हुरूफ मुफरद हैं। और मुरक्कब हुरूफ जैसे अगर आप एक बे को लगाएं, बे जोड़ हे बराबर बे, भे, भे, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं भ। अब यही चीज भाई जैसे लिखा जाए, भाई लिखेंगे तो भ, भाई अगर हम लिखते हैं भ आकार, बड़ी, भ आकार बड़ी भाई, हर सही दुर्गे, ये दुर्गई भाई। और उस चीज को अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो ब में ह में आते भ अलिफ जबर भा, हमजा याजर ई, भाई, भाई। अब एक चीज और देख लें कि डाल, डाली, डाल, डाली, पेड़ की जो शाख टहनी जो होती है उसको हम डाल भी कहते हैं, डाली भी कहते हैं, जैसे डाली, डाली।